let me introduce the second inspirational speaker, Mr. Kunal. Mr. Kunal is again, a graduate of BCom. So wonderfully, he dreamt that, why can't we do poultry entrepreneurship? So, इन्होंने company रखा है Kuku Poultry. So wonderful name. The name itself is very attractive. Kuku means, you know that, how a chicken makes a sound. So he has implemented such a great organizational adaptation. They have adapted SAP. SAP, you would have heard, the German company, #1 software company, adapting SAP for where? Village panchayats. He has put a very good tagline. Our headquarters based at Gram Panchayat level in Alibag. Gram Panchayat level. भारत थे विलेज में, हम लोग जाना है विलेज में इन्होंने कुणाल ने करके दिखाया that they have 5 branches across Maharashtra. हम ग्राम पंचायत से भी ग्राम का उद्योग भी इंडिया को बढ़ाएंगे. So that is where inspiration have to drive. And he said that, as Amit said, his family is now 51,000 family है. इन्होंने 500 families से शुरू किया है. 500 families is being supported from Kukuchiku. So that is our happiness now, satisfaction. We at Institute want to percolate more so that, a chain link जैसा अभी आपने देखा होंगे blue chip technologies or blockchain ऐसा होना चाहिए our village में. So that is where Kunal comes into picture. Kunal has done such a wonderful effort in Maharashtra. All over to Kunal to listen to his story or his presentation. Over to Kunal. Yes, thank you, Mahesh Sarji. My voice is clear? Yeah, it's clear. आराम से बोलिए. Yes, great. Good morning, everyone. Good morning, sir, Chandra sir, and great story I heard by Amit Kumar sir. I know about Anmol Feeds and everything, so it's like me कि ये भी ऐसे ही है कि मैं भी एक सीखने मेरे लिए भी. Not only others, we are also junior than you, so it's really inspirations I'm getting from your speech. Just I share my presentations. Please go ahead. You can share. Green. Yeah. Basically, I'm from Mumbai. I born and brought up in Mumbai and completed my school educations and college, everything did in Mumbai. Actually, this business is started by my father and my uncle in 1987, and that time they both are the under service government job. So they got an opportunity that Saturday Sunday उनको ऑफ मिला, छुट्टी मिली. वो राजीव गांधी उन्होंने डिक्लेयर किया था 6 days वर्किंग, 5 days वर्किंग. सो वो टाइम पे उनको अपॉर्चुनिटी मिली. दे स्टार्टेड एक पोल्ट्री बिजनेस एज अ पार्ट टाइम, और वो पोल्ट्री बिजनेस जो पार्ट टाइम चालू किया तभी से लेके इन 2005 व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन, तभी तक उन्होंने पार्ट टाइम करके वो अपना बिजनेस था वो चलाया. इन 2005 आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशंस एंड देन आई प्लानिंग था कि क्या करना है. इट्स लाइक हर एक के मन में ऐसे हो जाता है कि क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद कि बिजनेस करना है या जॉब करना है. तो माय फैमिली बैकग्राउंड इज गुड, फेवरेबल फॉर बिजनेस, एंड फैमिली का सपोर्ट था. बट फिर भी थोड़ा सा मन में डर था. बट वी आर कम टू नो कि चलो अपना खुद का बिजनेस है, उसको ही टेक ओवर करें. दैट टाइम इन 15 years बैक सेम लाइक स्टोरी कि ये रूरल एरियाज में जाना है और वहाँ पे सेटल होना है, तो कैसे करना है, क्या करना है. सो डैडी डिसाइडेड दैट डे कि तुम पहले IPMT का कोर्स करके आ जाओ 6 months का. सो आई जॉइन 6 months IPMT course in 2005 and completed that वो 6 महीना. that 6 months in IPMT Venkateshwara Hatcheries उन्होंने establish किया institute. That's a golden period because I got so knowledge about the poultry and technical
इनकम थोड़ा बहुत काम करता था, निकल जाता था, बट जो टेक्निकली नॉलेज जो मिला एंड वहाँ पे जो स्टाफ और उनका जो प्रीमाइसेस एवरीथिंग, इट्स रियली गुड। तो वो टाइम पे ऐसे ही था कि पोल्ट्री में आना है, बिजनेस करना है, घर का है, तो कुछ तो नॉलेज लेके आना है। जस्ट वी हैव अ सेटअप, सो डोंट कम डायरेक्टली। तो ऐसा सुन के मैं पोल्ट्री में आ गया। आने के बाद एक एक करके ये एक शुरुआत की। जैसे टिल 2005 तक हमारा एक ब्रॉयलर फार्म था 12,000 बर्ड्स कैपेसिटी का। देन आते ही देख लिया कि एज अ फार्मर वी स्ट्रगल फॉर गुड क्वालिटी ऑफ चिक्स, सो वी फर्स्ट प्लान फॉर ब्रीडर्स। So when I was in IPMT, that time I only decided to go for breeder. तो उधर ही मैंने वेंकटेश्वरा में कांटेक्ट करके ब्रीडर फार्म के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने कोशिश की और 2006-2007 में ब्रीडर फार्म स्टार्ट किया। देन ब्रीडर फार्म स्टार्ट करने के बाद देखा कि आगे जाके इसको हैचरी में भी लगना चाहिए अच्छी, क्योंकि विदाउट गुड हैचरी यू कांट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ चिक्स। तो हैचरी सेटअप कर दी। देन अर्लियर बर्ड फ्लू के बाद थोड़ा सा मतलब कैपिटल चला गया था। जैसे मैंने एंट्री किया पोल्ट्री के अंदर और फर्स्ट शॉक आई गॉट इट इन 2006, नवापुर का बर्ड फ्लू का आउटब्रेक। सो दैट इज अ गुड लेसन फॉर मी कि जैसे ही आने के बाद आप एंट्री कर रहे हो फुल फ्रेश और तुरंत आपको एक शॉक बैठ जाता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स का रूल्स रेगुलेशंस उसके ऊपर जो आया, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया। दिस आर द वेरी लॉट्स ऑफ थिंग्स आई लर्न। कैसे यूनाइटेड रहना चाहिए, कैसे एसोसिएट रहना चाहिए अपने बाकी के फार्मर लोगों के साथ। एंड आफ्टर बर्ड फ्लू इम्पैक्ट इन May 2006, I started my contract farming also with a very small way. Here just एक 2000 capacity का एक farm मिला था and that time I was the only one. मैं एक जन था और मेरे हाथ के नीचे मेरे फार्म पे एक 8 से 9 लेबर थे। So I was that time as like supervisor. So I used to go line as a line supervisor और वहाँ पे जाके विजिट्स करता था, लिफ्टिंग करता था। सो आई स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल लेवल इन कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग। ब्रॉयलर फार्म का एक्सपीरियंस था, इसके लिए दिक्कत नहीं आई। देन मेरा पुराना ही एस्टेब्लिशमेंट था मैश प्लांट का। सो वो फीड बाहर से चिक्स, हैचिंग एग्स, ओवन हैचिंग एग्स ऐसे करके करके मैनेज करके हम लोग ने टिल 2009 तक मैनेज किया। देन 2009 वी शिफ्टेड टू अनदर लोकेशंस। वहाँ पे ब्रीडर फार्म का कैपेसिटी बढ़ा दिया बिकॉज द फर्स्ट स्लॉट वी आर टुक अराउंड 3000 ब्रीडर्स इन 3000 का 2 बैचेस वी हैव टेकन। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए बिकॉज वी आर सेलिंग द सेम वे हाउ दे अदर्स सेल। तो क्या करना चाहिए? सो आई स्टार्टेड इन 2017 माय प्रोसेसिंग प्लांट एट वेरी स्मॉल स्केल अराउंड 200 बर्ड्स पर डे। वो छोटा प्लांट था, मैनुअल था। आई जस्ट डिलीवर्ड दैट मटेरियल इन अलीबाग एरिया, but it's very difficult phase actually for the start anything from scratch। और बहुत बार ऐसे होता था ऑर्डर्स नहीं रहता था, ऑर्डर्स के लिए भी बहुत मारामारी चलती थी। ऑर्डर्स मिल गया
तो बहुत कम क्वांटिटी, कम प्राइस, वेरी लो कॉस्ट, या विदाउट एनी मार्जिन वी हाउ टू रन आवर शो. बट सेम थिंग कि करना है, चालू रखना है, क्योंकि एवरीवन इज सेइंग मार्केटिंग करना है, बट हाउ वी कैन मार्केट, हाउ कैन वी कैन डू द मार्केटिंग, that is not in our hand. So we started our processing plant in 2017. So I show you some infrastructure. This is my breeder farm, currently capacity 38,000, totally depend on a Venkateshwara hatcheries, because they support me lot from initial, because they given the good breed to the farmer. आज जो भी सक्सेस है, in that there is a very good shares of Venkateshwara. This is my hatchery, around 5 lakhs hatching eggs. We do the customized setting also in our hatchery for own purpose and outsiders also. So we established this hatchery. Then in 2018, when I was planned for pellet mill, that time, even initial phase also, I used to stock raw materials somewhere, because raw material, because of the raw material rates and fluctuations, we suffered lot. तो ऐसे हो जाता था कि शुरुआत में मेरे पास जगह नहीं, तो मैं गवर्नमेंट वेयर हाउस जहाँ पे सांगली में या अदर प्लेस, सो आई यूज्ड टू स्टॉक मटेरियल ओवर देयर. तो उसका एक्सपीरियंस था कि मटेरियल स्टॉक कैसे करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि ब्रॉयलर में आपके पास सेलिंग कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है. सम ईयर वी गेट 70 रुपीज एवरेज सेलिंग रेट, कभी 68 मिल जाएगा, कभी 73 हो जाएगा. सो देयर इज ऑलवेज बी फ्लक्चुएशन. सो व्हाट इज इन आवर हैंड, जस्ट with a silo, and that is my old mash plant in 2012. These are the main input my CBF broiler farming. Currently, I do only contract farming in western part of Maharashtra. Aim, अमित कुमार सर ने जैसे कहा कि they used to grow, अपने जो भी है, जो अपने अंडर काम करते हैं, उनको ग्रो करना है. The same aim we also kept. Healthy broiler, wealthy farmers, to train the farmers by updating their knowledge about poultry management by adopting new technologies. Therefore, by growing healthy broiler, farmer fetched more income. ये इनिशियल फेज से हम लोग ने गोल रखा, और उसके हिसाब से फार्मर्स को काफी सारा जो रिक्वायरमेंट था, चिक्स, तो चिक्स के लिए ब्रीडर फार्म, हैचरी, टेक्निकल सपोर्ट्स, फीड, सारा चीज फार्मर्स को अवेलेबल किया. तो इट्स लाइक उनको भी अच्छा हो गया कि एक इनकम मिल गया, एंड दे आर आल्सो वेरी कनेक्टेड टू अस. नाउ इन माय एरिया सम फार्मर्स आर वेरी क्लोज. वो जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोरोना और इसकी तरह, दे ऑलवेज कॉल मी, सब क्या होगा अभी आगे, डोंट वरी. ऐसा उनका एक वर्डिंग भी मिल जाता है फार्मर्स का, और सपोर्ट भी मिल जाता है. दैट्स अ रियली ग्रेट फॉर अस. बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑलवेज बी अ रिस्की पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा इंडस्ट्री रोलर कोस्टर की तरह हो रहा है. लाइक इतना सारा प्रॉब्लम्स जा रहा है, और लास्ट 3-4 इयर्स में तो काफी स्क्वीज हो गया इन ऐसे. That is catastrophic in last 3 years. I'll show you the जो I'm not मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं जो भी नए आ रहे हैं उनको, but I'm the fact and how to come out. Means
this is a situation. Last 3 years, broiler industry suffered lot, but earlier we are enjoyed lot. Not only suffered lot means, but earlier the period was very good for the poultry industry. That's why we are made such a big infrastructure in within 10 years. The first step was the first catastrophic hamper was abnormally high maize price in 2019. Again same कि 2019 में अपना मक्के का प्राइस बढ़ गया, देन अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के बाद रियलाइजेशंस कम हो गया, थोड़ा सा मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था, थोड़ा फ्लडेड था, एवरीवन इज इंक्रीज द कैपेसिटी. तो highest maize price 24-25 rupees, and average maize price is around 19 to 20 rupees whole year. It's very difficult to survive the poultry industry, और उसके सामने realizations काफी कम था. So it's very difficult phase we are seeing, but somehow managed because of in 2018 we have established our silo. So we have managed some losses, reduce the losses, but losses तो losses है, थोड़े कम कर सकते हो but मिटा नहीं सकते even. So ऐसे करके मैनेज कर दिया. So always be in good track. क्या उनसे बात करेंगे तो आप प्रैक्टिकल में जो बिजनेस करे उनके साथ को ये नॉलेज मिलेगा तो अपने लिए इजी हो जाएगा. देन सेकंड, रूमर ऑफ चिकन ट्रांसमिट कोविड-19 February 20. दिस इज अ डिजास्टर. वो तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता. एंड आफ्टर दैट द वर्ल्ड इज चेंज एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री आल्सो चेंज लॉट. ये रूमर ऑफ चिकन होने के बाद एक्चुअली वहां पे ज्यादा हम लोग अफेक्ट हो गए, नॉट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोरोना पैंडेमिक. उसके बाद तो इंडस्ट्री रिकवर होना चालू हो गया, बट ये जो रूमर जो पोल्ट्री के ऊपर आता है इसके लिए काफी सारी स्टेप्स ले ली, मींस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, बट वो जो इम्पैक्ट था वो होना था, वो हो गया था. देन this is a very actually individual level in Raigad district and somewhere coastal to the Maharashtra. वहाँ पे 3 जून 2020 को निसर्ग साइक्लोन आ गया. वहाँ पे मेरे कुछ फार्मर्स जो थे, फार्मर्स लोग, उनके फार्म्स अफेक्ट हो गए बिकॉज दे हैव कंस्ट्रक्टेड लो कॉस्ट शेड्स. Our infrastructure is very firm because of the we are spend lot and quality. Then this year we are facing or face, I think it's over, January, February, bird flu. And this is not in poultry actually, it's like wild birds, but again bird's face is poultry. We are again suffered. These are the major crises, and I think so my last 15-16 years I have never seen such a crisis, like back to back. But still show must go on. जो चल रहा है अच्छी तरह से करना है, जो हाथ में है उसके लिए भागना है. और इसके लिए मैं ये जो हुआ क्राइसिस, इसके अंदर ओवरकम करने के लिए कुछ सपोर्ट्स मिले, एंड दैट्स अ रियली ग्रेट सपोर्ट्स. वो सपोर्ट्स भी इसके लिए मिले कि our missions deal with us, progress with us. Our company believes in working together with business partners through our shared value, creating nature bonds and building relationships. It is said unity is a strength, and this belief lies at the core of our company. By working together, both become stronger to establish the organizations. This is an aim which given by my parents, my father, my uncle, and everyone. It's really great कि last 14 years
15 years, my individual records was cleared. That's why I again stand up. The first government, कुछ भी हो गया, पर गवर्नमेंट इस बार काफी अच्छा सपोर्ट दिया इन कोरोना, इन बर्ड फ्लू. आई डोंट थिंक सो they are not supported. ऐसे कुछ हुआ है, ऐसे नहीं हुआ. In because I seen 2006 वहाँ पे जब फर्स्ट हुआ था, तभी गवर्नमेंट also was confused कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what is bird flu, how to react. But this time is picture थोड़ा सा बदला नजर आ गया. Then again our bankers, अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा रखना ही चाहिए. बिजनेस के अंदर बैंक इज अ वेरी गुड रोल और मेजर रोल है, क्योंकि लास्ट 12 years दिस बैंक इज कनेक्टेड टू मी एंड उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया. जब भी आई नीड फंड्स फॉर एनी प्रोजेक्ट्स, आई नीड एनीथिंग, वो सपोर्ट तो उनसे ही मिला. नॉट इवन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स, इवन दिस पैंडेमिक 10% जो रिलीज हो गया, 20% GCL हो गया, FITL हो गया. जस्ट आपका शो चालू रखना वर्किंग कैपिटल में, तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया. इवन आवर बिजनेस पार्टनर्स, वी आर अपने सप्लायर, दैट इज ऑल्सो मस्ट, दे आर सपोर्ट मी लॉट. ये पीरियड में भी उन्होंने मुझे चालू रखने के लिए, बिजनेस करने के लिए काफी सपोर्ट किया. एसोसिएशन, दे हैव मेड did very good job. वसंत कुमार सर, द प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र एसोसिएशन, वो मुझे फोन करके पूछते थे मॉर्निंग में, तू है ना अभी भी उस तरह स्पिरिट है ना. पूछते थे फोन करके कि बाबा तू डिमोरलाइज नहीं हुआ ना. वो मुझे हिस्ट्री बताते थे कि पास्ट में कैसे हो गया था, 96 में कैसा आ गया था, ये कैसे हुआ था. इससे भी हम लोग ओवरकम करेंगे. जो मॉरल सपोर्ट और मोटिवेशन देते थे, नॉट ओनली मी, आई थिंक सो उन्होंने सबको दिया जो महाराष्ट्र के अंदर है, और जो बाकी के लोग हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी शेयर किया. लास्ट एंड लीस्ट, जो भी है, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, एवरी फ्रेंड्स, पोल्ट्री फ्रेंड्स, उन्होंने काफी सपोर्ट किया. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सजेशंस एंड मॉरली मोटिवेट करना और सपोर्ट मिलना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. सो who those are the coming new right from beginning think this all the way कि ये लोग सब जन हम अपने साथ होने चाहिए और इनके साथ कभी भी कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि ग्रो करने के लिए इजी हो जाए. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद, ये अप एंड डाउन देखने के बाद, इन 2017 आई स्टार्टेड माय प्रोसेसिंग प्लांट. देन प्रोसेसिंग प्लांट रिटेल में जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, बिकॉज अवर कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू अडॉप्ट फ्रेश चिल्ड फ्रोजन चिकन, और वेरी डिफिकल्ट टू सेल लाइव बर्ड्स इन मार्केट. इन्वेंटरी कंट्रोल करना, स्टॉक मैनेज करना, रिटेल शॉप के अंदर मैनेज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई यूज्ड टू स्टार्ट सेम थिंग टू, उनको फ्रेश चिल्ड कैसे दूं, क्या दूं, उनको कैसे करूं, बट आई रियली फेल्ड टिल कोरोना. कोरोना के अंदर बॉम्बे पूरा लॉकडाउन हो गया, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गया. खत्म मीन्स दैट स्टॉप. तो मेरा पास प्रोसेसिंग प्लांट है. आई रियली सरप्राइज कि कैसे करूं इसको, प्रोसेसिंग प्लांट को कैसे चलाऊं, बिकॉज वो तो चलना तो चाहिए. सो आई सीन द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ डीमार्ट कि वो होम डिलीवरी चालू किया था उन्होंने इन अप्रैल 1 में, कि आप घर में हो, घर में बैठे रहो, आपको बिल्डिंग का ऑर्डर लेंगे और पूरा बिल्डिंग या सोसाइटी को होम डिलीवरी दे वाज डूइंग. तो हम लोग ने भी सोचा, और बॉम्बे के अंदर जो भी कनेक्शंस थे, जो फ्रेंड्स थे, उनसे मिलके होम डिलीवरी स्टार्ट किया. वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, और दैट इज रियली ग्रेट फॉर मी कि मुझे एक थोड़ा सा ओपन अप मिल गया ऑनलाइन के लिए. देन मैंने प्रमोट किया मेरा एप्लीकेशन कुकुचकू पोल्ट्री फार्म का, एंड वहां पे चिकन के सारे प्रोडक्ट्स विद मैरिनेशन प्रोडक्ट्स सब चालू कर दिया. मेरा होलसेल के लिए पैकिंग 2 kg का है, एंड रिटेल
का पैकिंग ये है, दिस इज माय कि इतने सारे प्रोडक्ट्स, ओनली प्रोडक्शन इज नॉट गुड मेथड टू सर्वाइव इन इंडस्ट्री। आपको कुछ भी करके रिटेल में जाना पड़ेगा एनी हाउ। सो बर्ड फ्लू के अंदर जब भी मेरा रिटेल कोरोना के अंदर जब भी मेरा रिटेल होलसेल का था, सो मैंने वो टाइम पे काफी मटेरियल स्टॉक कर दिया। इवन होल बर्ड्स अराउंड 100 टन्स इन कोल्ड रूम आई स्टॉक। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो गया, आफ्टर 6 मंथ्स थोड़ा ओपन हो गया होटल इंडस्ट्री, पहले टेक अवे चालू हो गया, बाद में वो होटल इंडस्ट्री ओपन हो गया। इन टिल दिसंबर टोटली मैंने सेल कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने लास्ट 3 इयर्स वो पेन ले लिया था प्रोसेसिंग प्लांट का, तो वो इम्पैक्ट मिल गया एंड अगेन रिटेल के लिए मुझे जंप मिला। सो देयर इज अपॉर्चुनिटी। और बहुत बार ऐसे हो गया कि जैसे रिटेल में चालू करो, बट चालू करने के बाद बहुत बार फेलियर आता था, पर फेलियर के साथ कभी ना कभी उसमें सक्सेस आएगा। दैट इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी कि कोरोना के अंदर मैंने मटेरियल स्टोर करके रख दिया, उसका रियलाइजेशन मिल गया। अगेन दैट इज इंक्लूडिंग माय कॉस्ट रियलाइजेशन। आप जैसे रॉ मटेरियल स्टॉक करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर कम लेके आते हो, वैसे ही आप रियलाइजेशन अच्छा लेके आ जाते हो, तो दैट इज ऑल्सो एडेड इन योर मार्जिन। दिस इज माय एडवर्टाइजमेंट व्हाट आई डू। These are the certifications of my all the जो भी है। Even my one of brother is automobile engineer, so we started our transport fleet. Raw materials खुद के लेके आ जाते हैं, फिर dispatch करते हैं, cold van है, cold storage to supply all the chickens and all. This is a model we have implemented. If controlling operations is very important in poultry. This is our team. Employees first. Always be employees first to give opportunities for employment and stable income to local people, which is a step to discourage migration and urbanizations. This is our aim. So we have set up our head office in Gram Panchayat in village. This is my family team, my father, me, my brother who looks sales and marketing, my another brother Unka Patre. He is he was staying 14 years in UK. वहाँ से IT job करने के बाद back to India, स्वदेश की तरह वो भी बाकी इंडिया में आ गए। Then my uncle Prashant Patre and Shreyas. He's an automobile engineer. So all are in poultry. This is my simple and shortest story. If anything you need, any help, any questions, just nearby me, or everything is I'm open. And thank you, Dr. Mahesh sir. You have given me opportunity to speak, and really thanks to everyone. Thank you, Kunal ji. You can stop the screen sharing so that panel can be visible. Yes, sure. It's great to listen to Kunal Patre and the Patre family, so as to say that he has created wonders in poultry. So that's how we always want that success stories to come from grounded. If you see in 2006 he started journey of 15 years. He claims now helping Western Maharashtra, where you all know that how much difficulty is there for the livelihood and lives. So that is what the real inspiration Mr. Kunal Patre has brought in for the panel here.